Gagan Nagpal from Action Group of Hospitals. Viewers, I am again back in action for you on another educational and awareness program on Brain Tumor Day. Viewers, today is a World Brain Tumor Day, and I am really today honored and pleased to introduce to you two very experienced doctors in its specialties, Dr. Prashant Kumar Chaudhary, he is a neurosurgeon, and Dr. Naveen Agarwal, he is a known oncopathologist. You will be surprised that what this combination we are today going to do. Viewers, no surgery can be taken place without the supporting services. And now it is the world of this modern era is a very different than the conventional era of the medical science. Brain tumors are now no more in non-treatable tumors. They can be treated, but with the help of their supportive services. And supportive services are as important as the surgeon. So let's welcome Dr. Prashant Chaudhary and Dr. Naveen Agarwal in our show. Sir, welcome to our this show. Viewers, Thank Dr. you. Prashant Chaudhary is a leading neurosurgeon and he has done his post-graduation and specialization from PGI Chandigarh. He Thank did you. He did MCH from the PGI Chandigarh and has a special interest in treating brain tumors, spine surgery, neurovascular surgery, and neuroendocrine surgery. He is heading the department in Shri Balaji Action Medical Institute. And with me, Dr. Naveen Kumar Agarwal. He has having exceptional experience in oncopathology medicine. He has done his specialization from, from a very renowned institute PGI Chandigarh, and has a special interest in histopathology, immunohistochemistry, molecular pathology, which has a very important role in the brain tumor, and flow cytometry. Sir, welcome to our this show, sir. Thank you. Thank you. Sir, our first question from you is, sir, what all tumors are considered really as a brain tumor, or they are something else? Good morning, viewers. ब्रेन ट्यूमर्स जैसा आपने कहा नाम में ही अपने आप इट इज इम्प्लाइड सो वॉट एवर इज अराइजिंग द ट्यूमर इफ वी से इन द लिटल टर्म कॉमन आम बोलचाल की भाषा में सो एनीथिंग इनसाइड द ब्रेन व्हिच इज नॉट नॉर्मल इज टोल्ड एज अ is named as a brain tumor. Tumor means some nodule, something, some mass which is not there naturally. So anything within this area, this bony cavity, anything is there inside, it is a brain tumor. So any unnatural growth? Any unnatural growth, any unnatural thing which is occupying a space, वो स्पेस लेगा तो नॉर्मल ब्रेन की जो रहने की जगह है उसे वो खा जाएगा, उसे डिस्ट्रॉय करेगा, तो नॉर्मल जो फंक्शनिंग होती है ब्रेन की खराब हो जाती है. नाउ ब्रेन ट्यूमर जैसा आपने पूछा कि ब्रेन ट्यूमर ये तो समझ में आ गया हमें कि जो भी इसके अंदर है एक कोई स्पेस ऑक्युपाइंग लीजन है उसे हमने कह दिया ट्यूमर है. बट मोटा मोटा अगर हम कहें इसको थोड़ा और इलेबोरेट करें तो ये दो तरह के होते हैं. एक है वो जो बेनाइन है, बिल्कुल ही क्योरेबल है, बिल्कुल ट्रीटेबल है, जिनको आप वहां से हटा दीजिए वो हमेशा के लिए आपकी जिंदगी से गायब हो जाते हैं. और दूसरे जिसकी वजह से लोगों में डर फैला होता है, भयावहता फैली होती है, जिसे हम ब्रेन कैंसर्स कहते हैं, जिसकी वजह से इतनी सारी चीजें लोगों में डर बैठा होता है. तो हम आज इसी पे चर्चा करेंगे. ये दो तरह की डिजीजेस हैं, लोगों को पहले से नहीं पता होता, इसीलिए ये वर्ल्ड ब्रेन ट्यूमर डे स्टार्ट हुआ था 2000 में. 2000 में जर्मनी में स्टार्ट किया था कि इस मिथ को दूर किया जाए कि ब्रेन ट्यूमर का ये मतलब नहीं हो गया कि वो ब्रेन कैंसर है और वो बिल्कुल ही लास्ट स्टेज है. नहीं, ब्रेन ट्यूमर मतलब कोई भी ऐसी रसौली, कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट जो नॉर्मल कैविटी के अंदर बैठकर उसने नॉर्मल ब्रेन को डिस्ट्रॉय करना शुरू किया. तो आज हम इस पे आगे बातें करेंगे. बिल्कुल सर, हमारे पास बहुत क्वेश्चन आ रहे हैं सर कि ब्रेन ट्यूमर है क्या, ब्रेन ट्यूमर कितने प्रकार का है, ब्रेन ट्यूमर कितना घातक है. तो सर यही हम आपसे अब पूछते जाएंगे. सर हमसे दूसरे जो हैं मिस्टर मनोहर हैं सर, वो ये पूछ रहे हैं कि सर क्या ब्रेन ट्यूमर क्या हमेशा ही बहुत ही घातक होते हैं, डेंजरस होते हैं, फैटल होते हैं? बिल्कुल नहीं. अगर हम 2021 की बात करें तो ऑलमोस्ट सारे के सारे पेशेंट ट्रीट होने के स्टेज में होते हैं, ठीक ठाक लाइफ जी सकते हैं अगर आपका टीम वर्क हो, कंबाइंड अप्रोच हो और उसे न्यूरोसर्जिकल टीम, न्यूरोपैथोलॉजिस्ट टीम, रेडिएशन ऑन्कोलॉजी टीम सबने अगर कंबाइंड अप्रोच से अगर देखा हो
तो खराब से खराब ब्रेन कैंसर की मैं अगर बात करूं, जो दुनिया में सबसे खराब माने जाते हैं, उसमें भी लॉन्गेविटी हमने बड़ी अच्छी देखी है। लोग सालों साल तक चलते रहते हैं विद अ गुड लाइफ। तो ये मानना तो आज की डेट में बिल्कुल गलत है। वो 40 साल 50 साल पुरानी बात हो गई, जब टेक्नोलॉजी इतनी नहीं थी कि आप एक बार ब्रेन के अंदर गए तो फिर वो कई सारे कॉम्प्लिकेशंस होते थे। आज के डेट में बिल्कुल ऐसा नहीं है। सेफली लोग आते हैं, सेफली सर्जरी होती है और सेफली लोग जो पोस्ट सर्जिकल Recover लाइफ होती है है। उसके बाद हाँ, लाइफ मॉडिफाई जरूर होती है, बट दे कैन लीड द नॉर्मल बेटर क्वालिटी लाइफ। तो सर हम अदर शब्दों में ये कह सकते हैं कि सर इट इज नॉट द पासपोर्ट टू डेथ। ना ना ना, नॉट एट ऑल, नॉट एट ऑल। यही अवेयरनेस के लिए तो दुनिया भर आज में, का प्रोग्राम। हाँ, आज हम लोग इसी अवेयरनेस के लिए बैठे हैं कि ब्रेन ट्यूमर इज जस्ट अनदर ट्यूमर लाइक एनीवेयर इन द बॉडी। सिर्फ फर्क इतना है कि आपके ये सेंट्रल जो सिस्टम है, मदरबोर्ड है, ये इसके ऊपर बैठा है, तो थोड़ी सी सावधानी एक्स्ट्रा रखनी पड़ती है, थोड़ी टेक्नोलॉजी का यूज ज्यादा करना पड़ता है, और जहाँ इतनी सारी टेक्नोलॉजी अवेलेबल है वहां पे ये बहुत ही सेफ हो जाता है। सर हम कई बार सर अपने आसपास लोगों से सुनते भी हैं कि ब्रेन ट्यूमर की अगर हमने सर्जरी करा ली तो सर वो बिल्कुल ही कोमा में चला जाएगा और हमें ये नहीं करनी चाहिए। तो सर आप इस पर लोगों को क्या हम बताना चाहेंगे कि ये कि ब्रेन ट्यूमर की सर्जरी जो है कि ये कोमा के लिए है क्या? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। पिछले 10 साल में मैंने करीब-करीब 10-10 घंटे, 11-11 घंटे की ब्रेन ट्यूमर सर्जरीज़ की है, और उसमें से कई सारे लोग हैं जो आज मैनेजरियल पोस्ट पे हैं और यहीं एनसीआर में कई अच्छे इंस्टीट्यूशंस में अच्छे पोस्ट पे काम कर रहे हैं। अगर आप उनसे मिलेंगे, हो सकता है फेसबुक पे उसमें से कोई आ भी जाए, तो आप देखकर बता नहीं सकते वो हमारे आपकी तरह बैठकर बातें कर रहे हैं। ओह! तो पहली चीज़ ये तो दिमाग से हटा दीजिए कि ये फैटल है। हमने जितनी भी सर्जरी अभी तक करी है या देखी है, उसमें से ऑन टेबल डेथ या सर्जरी के दौरान डेथ, वो अब करीब-करीब गायब है, अब नहीं होता। टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो गई है, एनेस्थीसिया, न्यूरो एनेस्थीसिया एडवांस है, पोस्ट सर्जिकल जो क्रिटिकल केयर है वो इतनी एडवांस है। तो वो सब चीज़ें तो पुरानी बातें हो गई, वो 50-60 साल पहले या 40 साल पुरानी बात थी, अब नहीं होता। हाँ, ये ज़रूर है कि ब्रेन के जिस एरिया में आप सर्जरी कर रहे हैं, वहाँ पे कुछ नफ़ा-नुकसान होता है। अगर मान लीजिए कोई ट्यूमर ऐसी जगह ब्रेन में बैठा है, जहाँ से आपकी धड़कन कंट्रोल होती है, साँस की दिक्कत आती है, तो उससे मरीज़ों को निकलने में, आईसीयू से बाहर आने में 15-20 दिन लग सकते हैं, वो होता है। बट उसके बावजूद भी, मैं एक एग्ज़ाम्पल दूँगा, आज से 5 साल पहले करीब मैंने एक बच्चे की सर्जरी की थी, जो ब्रेन स्टेम में ट्यूमर था। ब्रेन स्टेम वो हिस्सा है जहाँ से हमारी साँस चलती है, धड़कन चलती है, और ये बात है 2016 की। द पेशेंट सर्वाइव्ड सर्जरी, 24 घंटे वेंटिलेटर पे था, उसके बाद उससे बाहर आया। फिर उसकी मॉलिक्यूलर डायग्नोस्टिक हुई। डॉक्टर नवीन उसके बारे में थोड़ी और चर्चा करेंगे कि हम उसे किस तरीके से फ़ॉलो करें, उसमें और आगे का ट्रीटमेंट क्या-क्या दें। फिर सारा ट्रीटमेंट के बाद नाउ इट इज़ 5 इयर्स। वो अब 1000 किलोमीटर दूर से साल में 1 बार आता है मिलने, हाय हेलो करके जाता है, सब लोगों से मिलकर जाता है जितने लोगों ने उसकी केयर की थी। तो आप वैसे से खराब एरिया से भी आप ट्यूमर आज की डेट में निकाल सकते हैं, अगर आपके पास माहौल, उस तरह की टीम अवेलेबल है तो। तो ये बिल्कुल, चीज़ तो बिल्कुल अब समय वो पुरानी बात हो गई, कहावतों की बात हो गई, वो नहीं है। बिल्कुल। सर यही आज डॉक्टर नवीन से भी मैं यही जानना चाहूंगा कि सर जिस तरह डॉक्टर प्रशांत ने बताया कि टीम वर्क एंड राइट टाइम टू गेट देमसेल्फ ट्रीट। तो सर आज की सर मॉडर्न सर्जरी में सर न्यूरोपैथोलॉजी का सर ब्रेन सर्जरी में कैसे हेल्पफुल है सर? Thank you, viewers, and thank you, Gagan, to have me on this visual discussion. पहले तो मैं ये बताऊंगा, आज पैथोलॉजी और सर्जरी जो है बहुत इवॉल्व हो गई है। अब पहले की तुलना में आजकल हम लोग क्यूरेटिव इंटेंट से काम कर रहे हैं और वी आर गिविंग अ बेस्ट एफर्ट टू हैव अ बेस्ट क्वालिटी ऑफ लाइफ फॉर द पेशेंट। अभी सबसे पहले मैं स्टार्ट करूंगा, जैसे डॉक्टर प्रशांत कह रहे हैं, सर्जरी, जैसे सर्जरी हम देखते हैं कि पेशेंट की सर्जरी कर रहे हैं, सबसे पहले रोल आता है इंटरऑपरेटिव कंसल्टेशन, जो हमारे यहाँ बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छा अरेंजमेंट है। हम जैसे डॉक्टर प्रशांत ऑपरेशन कर रहे हैं, विदिन हम 10 मिनट में हम बता देते हैं कि कैंसर जो वो थोड़ा सा हमारे को टिश्यू देते हैं जिसको हम चेक करते हैं, तो हम बता देते हैं कि कितना उसका खतरनाक है, ज़्यादा खतरनाक है, कम खतरनाक है। उसके हिसाब से वो अपनी सर्जरी को मॉडिफाई भी कर सकते हैं। करेक्ट। और उसके बाद
हम उनके मार्जिन भी चेक करके बताते हैं कि हाँ बॉस ये जो है इसके बाद यहाँ इससे आगे और काटने की जरूरत है। ये जो फैसिलिटी थी पहले बहुत ज्यादा डेवलप नहीं थी, अब इतनी प्रिसाइज हो गई है कि सर्जन को पता चल सकता है आराम से, जबकि पेशेंट लेटा हुआ है ओटी टेबल पे, तो भी पता चल सकता है कि भाई सर्जरी जो है इतनी मार्जिन से करो ताकि इसका बेस्ट आउटकम हो। सबसे बड़ा रोल तो इसका है, इसमें टीम एफर्ट है बहुत ज्यादा फिनोमिनली इंक्रीज हुआ है। और मैं ये कहूँगा कि विद द एडवेंट ऑफ टेक्नोलॉजीज लाइक रेडियोलॉजी, इंटीग्रेटेड अप्रोच से बहुत ज्यादा फर्क पड़ रहा है। और मिनिमम जो है डिस्ट्रक्शन से, जिसे कहते हैं ना सराउंडिंग एरियाज को बिना इफेक्ट किए हुए मैक्सिमम ट्यूमर को निकाल के पेशेंट को बेस्ट लाइफ दी जाए। तो सर एक तरीके से सर हम ये कहें कि सर जो आपका रोल है दैट इज लाइक ए गूगल मैप, जिस तरह गूगल मैप बताता है कि रास्ता यहाँ जाना है, इधर ऑब्स्ट्रक्शन है और इधर आपने जाकर करना है, तो ये हमारे सर्जन्स के लिए इतना हेल्पफुल हो जाता है कि उन्होंने किस इंटेंसिटी की सर्जरी करनी है, उससे उनको इस बीमारी के बारे में पहले से ही पता चल जाता है। एम आई करेक्ट सर? कितनी सर्जरी करनी है, वेरी ट्रू। मतलब ये देखिए हमें फंक्शनलिटी देखनी होती है कि पेशेंट सर्जरी के बाद भी अपनी फंक्शनल लाइफ जी सके और वो ट्यूमर भी वहां से धीमे धीमे खत्म हो जाए। तो इंट्रॉप हमें कितना एग्रेसिव रहना है, ये फैसिलिटी सब जगह नहीं होती है अवेलेबल। और मैं आई एम फॉर्चुनेट कि ये हम जैसे ही भेजते हैं तो विद इन 10 मिनट्स ये हमें बता देते हैं कि आपका ट्यूमर इतना एग्रेसिव है, तो उसके हिसाब से हमारा माइंड बिल्कुल ही ट्यून्ड हो जाता है कि अब हमें कितना एग्रेसिव होना है, किस किस एरिया से निकालना है, कहाँ पे हमें रुकना है, सो दैट 4-5 घंटे की सर्जरी के बाद जब पेशेंट बाहर आता है उससे, तो उसकी फंक्शनलिटी चेक करते हैं हम, उसके हाथ चल रहे हैं, पैर चल रहे हैं, बोल रहा है, देख रहा है, सारी चीजें हैं। एंड दैट इज अ रियल हेल्प, रियल टाइम हेल्प, मतलब इसको रियल टाइम पैथोलॉजी आप नाम दे सकते हैं। तो ये हम अचीव कर पाए हैं और इससे बहुत सारे मरीजों को फायदा होता है और रियल टाइम फायदा है। जब अटेंडेंट देखते हैं कि सर्जरी के बाद भी मरीज उनसे बातें कर रहा है, देन यू कैन इमेजिन कि वो जो पहले की चीजें थी कि सर्जरी हो गई और कोमा में ही चला गया, वो चीजें बिल्कुल ही लोगों को जो एक बार मिल लेते हैं तो फिर उन्हें लगता है कि नहीं ठीक है, फिर वो अगली बार अगले ब्रेन ट्यूमर्स को लेकर आते हैं कि नहीं यहाँ ये चीजें पॉसिबल है, ये चीजें हो रही हैं। तो इसमें इनका बहुत बड़ा रोल है, पैथोलॉजिस्ट का बहुत बड़ा रोल है। तो व्यूअर्स, कभी भी जब आप ऐसी ब्रेन ट्यूमर सर्जरी के बारे में आप जब सोचते हैं, कहीं जाते हैं, तो इन दो चीजों का बहुत उन्हें ध्यान रखना चाहिए। अच्छा सर्जन होने के साथ साथ बैकअप फैसिलिटीज भी होनी चाहिए, जिसमें डॉक्टर नवीन अग्रवाल का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। हमारे डिपार्टमेंट ऑफ पैथोलॉजी मेडिसिन का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है, जो कि आपकी रिकवरी में बड़ा हेल्पफुल रहता है। सर हमसे ना कुछ ये भी क्वेश्चंस पूछ रहे हैं कि सर कि जो हेडेक्स होते हैं, कॉन्टिन्यूअस हेडेक्स, सर क्या ये क्या ब्रेन ट्यूमर का संकेत देते हैं? क्या ये सही सवाल आपने पूछा। मतलब ये तो मैं करीब 15-16 साल 17 साल से ये सवाल सुनता है उन लोगों से कि मुझे 3 महीने से सर दर्द है, क्या कहीं मुझे ब्रेन ट्यूमर तो नहीं हो गया। मैं एक चीज आपको बताना चाहूंगा कि सर दर्द एक सिम्टम है। जैसे सर्दी जुकाम हो गया तो आपके नाक में सुरसराहट होती है, उसी तरीके से अगर इस कैविटी के अंदर अगर कुछ भी चीज आई जो इसके नर्व्स को अफेक्ट कर रही है, जो इसके सेंसिटिव स्ट्रक्चर है उसको अफेक्ट कर रही है, तो हमें हेडेक होता है, ये सही है। पर ब्रेन कैंसर में हेडेक होगा, ये हार्डली 10 में से 2-3 केसेस में होता है, जो काफी एडवांस स्टेजेस में होता है। नॉर्मली जो हेडेक है हमारा, वो ब्रेन के अंदर से नहीं होता। मैंने इस पे पहले भी कई कॉन्फ्रेंसेस में कई जगह ये चीजें कही हैं कि बड़ी विचित्र बात है, हमारा शरीर, हमारा ब्रेन जो हमारा मास्टर ऑर्गन है, पूरे शरीर में कहीं भी दर्द हो, एक चुभन हो तो तुरंत डिटेक्ट करता है। बट ब्रेन के अंदर अगर कुछ हो रहा हो तो वो पेनलेस है, उसे पता नहीं चलता किसे दर्द हो रहा है। तो ब्रेन के अंदर अगर कुछ डेवलप हो रहा है तो पेन नहीं होगा, हेडेक नहीं होगा। बट अगर ब्रेन के बाहर जो चीजें हैं, जो झिल्ली है, जो हड्डी है, जो साइनसेस हैं, ब्रेन जिसके ऊपर, जिन हड्डियों के ऊपर बैठा है, इन सब चीजों में अगर कोई विकार पैदा होते हैं या ब्रेन के अंदर स्वेलिंग बहुत तेज होती है, जिस स्वेलिंग की वजह से ये नर्व जो बाहर की झिल्लियां हैं वो स्ट्रेच होती हैं, जो खून की सप्लाई है वो अफेक्टेड होती है, तो फिर सर दर्द हो सकता है। तो सर दर्द अगर हो रहा है तो प्राइमरली हम ये मानते हैं, अगर कोई पेशेंट हमारे पास पहले आता है तो सर दर्द जैसे ही हुआ तो उसमें हम ब्रेन से बाहर की सारी चीजें पहले चेक करते हैं। 99% केसेस में ये चीजें साइनसेस से, आंख से, विजुअल रिलेटेड होती हैं, या कोई चोट वाली पुरानी निशानी होती है, ब्लड प्रेशर बढ़ा होता है जिससे कि ब्लड सप्लाई ब्रेन में थोड़ी देर के लिए बढ़ गई, तो इन सबसे हेडेक होता है। ब्रेन ट्यूमर से हेडेक होना नॉर्मली इट इज अ लेट स्टेज, वो तब है जब आप
आप ब्रेन ट्यूमर के कुछ साइंस जो मैं आगे बात करूंगा, उसको आप शुरुआती दौर में इग्नोर करते चले जाते हैं, भूलते चले जाते हैं, भुला देते हैं कि नहीं इसमें कुछ नहीं हो रहा, तो जाकर वो चीज फिर लेट स्टेज में हेडेक के रूप में कन्वर्ट हो सकती है। सर ये तो आपने सर बहुत अच्छा हमें बताया कि अगर आपको हेडेक्स हैं तो सारे हेडेक्स जो हैं वो ब्रेन ट्यूमर तो नहीं है, आप उसके बारे में बहुत कम, बहुत कम, बहुत बहुत कम कम सर, है, लेकिन क्योंकि आप हमें सर वो दो चीजें बताएं सर, इसके क्या सिम्टम्स होते हैं ब्रेन ट्यूमर के, और ऐसी कौन सी जांच होनी चाहिए जो मैं डॉक्टर प्रशांत और डॉक्टर नवीन से भी पूछूंगा कि जो हमें ब्रेन ट्यूमर से या तो पहले करानी है, बाद में तो सर वो जब पेशेंट आपके पास आएगा तो अलग वो चीज तो है, वही है, करेक्ट। लेकिन पहले हमें क्या करानी चाहिए, जो कि आज हमारी इस अवेयरनेस टॉक का एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन भी है, जो मैं डॉक्टर प्रशांत और डॉक्टर नवीन को रिक्वेस्ट करूंगा कि हमें बताएं, लेकिन उससे पहले हमें सिम्टम्स बताएं कि क्या होने हमें देखने चाहिए। 4-5 मोटे तौर पे सिम्पटम्स है, जो हर कोई घर में बैठा अपने ऊपर देख सकता है। अगर आपके बिहेवियर में कुछ अनयूजुअल पैटर्न चेंज हो रहा है, कोई हाथ, पैर, उँगली देखना, बोलने में कोई दिक्कत, चलने में कोई दिक्कत, वो चीज़ हो रही है जिसका किसी पेन से रिलेशन नहीं है, एक्सीडेंट से रिलेशन नहीं है, ट्रॉमा से रिलेशन नहीं है, कोई दवाई आप नहीं खा रहे। तो किसी भी अंग में कोई अगर दिक्कत आ रही है, सनसनाहट, झंझनाहट हो रही है जो ठीक नहीं हो रही, उँगलियाँ कम चल रही है, हाथ कम चल रहे हैं, बोलने में दिक्कत हो रही है, या कोई फड़फड़ा रहा है काफ़ी तेज़ से जो ठीक नहीं हो रहा अपने आप बिना दवाइयों के, या फिट्स पड़ रहे हैं, बड़ा कॉमन है। अगर दौरे पड़ने शुरू हो गए, जो ठीक नहीं हो रहे, देखने में दिक्कत आ रही है, विज़न आपकी ठीक नहीं है, बार-बार उल्टियाँ हो रही हैं जो दवाई खाने के बाद भी नहीं ठीक हो रही, और इन उल्टियों के साथ सर दर्द है, मतलब सर दर्द के साथ उल्टियाँ हो रही हैं और वो दवाइयों से भी कंट्रोल नहीं हो रही। तो ये 4-5 चीज़ें हैं, और किसी भी हाथ-पैर में सुन्नपन, कमज़ोरी आना, दौरे पड़ना, नज़र में गड़बड़ी आनी जो ठीक नहीं हो रही, चश्मे वाले के अलावा, जो लोग चश्मा पहनते हैं वो चश्मा पहनने के साथ नज़र ठीक हो जाता है, लेकिन जो ब्रेन से रिलेटेड है वो चश्मा पहनने से भी उसकी ब्लरिंग ठीक नहीं होती, विज़न उसकी गड़बड़ रहती है। ये दोनों में बड़ा मेजर डिफरेंस है, वो ध्यान देना है। और इसके साथ-साथ सर दर्द जो ऐसा अनबियरेबल है, ऐसा लग रहा है कि सर फट रहा है, अंदर से किसी ने कुछ बॉम्ब रख दिया हो, और उस सर फटने वाले सर दर्द के साथ उल्टियाँ होना, चक्कर आना, बार-बार बेहोश हो जाना। तो ये 5 चीज़ें अगर आप ध्यान रखेंगे, ये अगर किसी में हो रही है, एक या एक से ज़्यादा कॉम्बिनेशन में, तो हमें उस समय उस पर्सन को स्क्रीन करने की निहायत ज़रूरी है। सिर्फ़ उल्टी की दवाइयाँ ना खाएँ, सिर्फ़ हेडेक की दवाइयाँ ना खाएँ, सिर्फ़ दौरे की दवाई लेकर चुप ना बैठ जाएँ। कमज़ोरी हो रही है तो नसों के लिए कुछ एक्सरसाइज़ करवा लिया, उससे ना चुप बैठें। यहाँ पे हमें ब्रेन को स्क्रीन करने की ज़रूरत होती है, और जो बेसिक स्क्रीनिंग है, जो कहीं पे भी आज के डेट में पूरे भारत में किसी भी डिस्ट्रिक्ट में पॉसिबल है। एक है प्लेन सीटी स्कैन। एक सिंपल सा सीटी स्कैन अगर हम कैट स्कैन करें, तो उससे ये बता देगा कि इस वाले स्ट्रक्चर के अंदर कोई नई चीज़, कोई फॉरेन बॉडी तो नहीं बढ़ के पैदा हो रहा जो ये सब सिम्पटम दे रहा हो। तो ये एक स्क्रीनिंग है कि अगर इन 4-5 चीज़ों में से कोई भी एक या एक से ज़्यादा किसी में भी हो रहा है, तो आप अपने आप को स्क्रीन करिए, अपने फिजिशियन से मिलिए जिनको आप रोज़ दिखाते हैं, उनसे बोलिए कि ये चीज़ें हो रही हैं। दे विल एडवाइस यू, और एक बेसिक सीटी स्कैन करके जो बहुत सस्ता है आज के डेट में, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में नियरली फ्री है सब जगह, प्राइवेट में भी ये काफ़ी चीप है। एक बेसिक स्क्रीनिंग है, जितने में आपका ब्लड टेस्ट होता है, उतने ही में एक स्क्रीनिंग ये हो जाती है, पता चल जाता है कि आप वहाँ से सेफ हैं। बिल्कुल सर, ये जो आपने आज 5 गोल्डन रूल्स जो बताए हैं, इनको कभी भी हमें मिस नहीं करना चाहिए। इनमें से एक भी अगर एक या दो या कुछ भी ज्यादा हो रही हैं, तो आपको अपने डॉक्टर और न्यूरो सर्जन अगर आपके शहर में अवेलेबल है तो जरूर उससे संपर्क करें, क्योंकि उसी से ही पता चलेगा कि जितनी अर्ली डायग्नोसिस होगा उतनी अर्ली इसकी रिकवरी भी होगी। करेक्ट। जितनी अर्ली डायग्नोसिस है, लाइफ उसकी उतनी लंबी मिलती है। अगर आप बिल्कुल अर्ली स्टेज में पकड़ते हैं, तो वो तो बिल्कुल क्यूरेबल है। कई सारे केसेस में ट्यूमर गायब हो जाती है, और आप नॉर्मल, अगर आपकी 70 साल, 80 साल की लाइफ थी, लोग उतनी लाइफ जीते हैं। बिल्कुल तो अर्ली स्टेज में पिक करना ये निहायत ज़रूरी है, और उसका अर्ली स्टेज में ही जितना ट्रीटमेंट किया जाए, जब तक उसका साइज़ छोटा है, साइज़ मैटर्स, और जब तक वो अपने उसी कन्फाइनमेंट में है, वहाँ से वो बाहर दूसरी जगह नहीं भागा, ब्रेन के दूसरे हिस्से में नहीं गया, उसको वहीं पकड़िए, वहीं पे उसे निकाल बाहर करिए उस एरिया से। उसको हर एक तरीके से, जितने तरीके से ट्रीट कर सकते हैं। बेसिकली ट्रीट करने के भी 3 तरीके हैं, सर्जरी एक है, फिर आज के डेट में एडवांसमेंट में मॉलिक्यूलर डायग्नोस्टिक ये बताती है कि उसका नेचर कैसा है। डॉक्टर नवीन इस पे ज़्यादा प्रकाश डालेंगे कि एग्ज़ैक्टली वो बता पाता है कि इसका नेचर कैसा है, आगे फ्यूचर में कैसा बिहेव करने वाला है।
उसके हिसाब से फिर कुछ कीमो की भी दवाइयाँ हैं, कुछ रेडिएशन भी है, रेडियोथेरेपी भी दी जाती है, कितने हिस्से में देनी है, कितना देना है। तो ये सब सारी की सारी जब चीज़ें हो जाती है, तो लाइफ नियरली नॉर्मल हो सकती है। बिल्कुल बिल्कुल सर, कभी भी सर इस समस्या से आप आंख मीच के नहीं बैठ सकते, क्योंकि आंख बंद करेंगे तो आप वर्ष ही होगा। इलाज से 95% चांसेस तो सर की बातों से ही मुझे लग रहा है कि आप एक नॉर्मल और क्वालिटी लाइफ जी सकते हैं। सर मैं डॉक्टर नवीन से भी सर ये जानना चाहूंगा, सर ने भी अभी बात की सर मॉलिक्यूलर डायग्नोस्टिक की, एक बहुत बार हम सुन रहे हैं, सर के मुंह से भी सुन रहे हैं। तो सर ये तकनीक जो है कितनी रेवोल्यूशनरी है ब्रेन ट्यूमर के ट्रीटमेंट में सर? मैंने इसमें कैंसर वर्ड नहीं जोड़ा है सर, वो आप बताएंगे सर, क्या ये सिर्फ कैंसर के वर्ड में ही ये मॉलिक्यूलर डायग्नोस्टिक जो टेक्निक है उसमें है, या कैंसर के ट्रीटमेंट में भी है इसका योगदान? गगन जी, ये बहुत ही उम्दा सवाल आपने पूछा है। आज की टाइम में मैं ये कह सकता हूँ लास्ट 3-4 सालों में ब्रेन ट्यूमर की मैनेजमेंट में बहुत डेवलपमेंट हुई है, बहुत कुछ चेंज हो गया है। जैसे अब मैंने जब स्टार्ट किया था अपना ऑन्कोपैथोलॉजी का टाइम, उस टाइम से अब में इतना चेंजेस आ गए हैं, उसके अंदर बहुत ज़्यादा डायग्नोस्टिक्स रोल है और ट्रीटमेंट अवेलेबिलिटी है, जिसके कारण अब ब्रेन ट्यूमर, जैसे अभी डॉक्टर प्रशांत ने एक ट्यूमर की सर्जरी करके निकाला, अब हमने उसकी डायग्नोसिस दिया कि भाई कितना मारक क्षमता है, ग्लायोमा है नहीं है। उसके बाद अब फर्दर हमें उसको ट्रीटमेंट कैसे करना, उसकी पूरी एक नई साइंस आ गई। अब उसके अंदर टेक्नोलॉजीज बहुत सारी डेवलप हो गई है, जिसके बिना उसका मैनेजमेंट अधूरा है। आप अगर उन टेक्नोलॉजीज को यूज नहीं करते तो आपका ट्रीटमेंट जो है इट विल बी लेस इफेक्टिव। जितना आपको आपको पेशेंट को आपको रिलीव करना है उतना अच्छा नहीं हो पाए। अब उसके अंदर मैं आपको 3-4 टेक्नोलॉजीज हैं जो हमारे यहाँ बहुत अच्छी तरह से डेवलप्ड हैं। खासकर सबसे पहले तो जैसे क्या है, मैं आपको एक बेसिकली समझना चाहता हूँ ये टेक्नोलॉजीज हैं क्या। जैसे आप समझिए कैंसर क्यों होता है। कैंसर इसलिए होता है कि हमारे डीएनए, जो कैंसर सेल जो होता है हमारे बॉडी का सेल होता है, उसके अंदर डीएनए के अंदर डिफेक्ट होता है। अब डिफेक्ट होने के कारण हमारी बॉडी के अंदर वो ग्रोथ करने लगता है। तो अब क्या देख रहे हैं, अब हमारी जो साइंस इतनी तरक्की कर रही है कि वो डिफेक्ट कौन सा है उसको पहचानिए और उसके अगेंस्ट दवाई दे के उसको वहीं रोक दीजिए ताकि कैंसर नहीं फैले। अब उसके अंदर कई टेक्नोलॉजीज महंगी होती हैं, कई सस्ती होती हैं। अभी मैं आपको बहुत सिंपल एक बताता हूँ, एक सिंपल टेस्ट है जिसके जो इम्यूनोहिस्टोकेमिस्ट्री कहते हैं, 1000-1500 का टेस्ट है। आप समझिए उस ट्यूमर पे आपने वो टेस्ट किया और आपने देख लिया कि उसके अंदर IDH1 म्यूटेशन है कि नहीं। सिंपल टेस्ट से बता रहा हूँ, 1500-1600 रुपए टेस्ट होगा, जो उसको आप आज देंगे तो कल हो जाता है टेस्ट। पर उसका इम्पैक्ट देखिए, वो ट्यूमर जिसके अंदर वो म्यूटेशन मिलता है वो पेशेंट की सर्वाइवल बहुत ज्यादा अच्छी है, जिसमें नहीं मिलता उसकी सर्वाइवल कम है। सिर्फ एक सिंपल टेस्ट। लेकिन ये जो टेस्ट है ये आप जैसे सर्जन को बताता है स्पेशली कि ये ट्यूमर कैसे प्रोग्रेस करेगा, वो कितना अच्छा पेशेंट रिस्पॉन्ड करेगा, ये बहुत बड़ी चीज है। आप और ये, लेकिन ये हर बंदा नहीं कर सकता, हर छोटी मोटी लैब नहीं कर सकती, क्योंकि ये बहुत सेंसिटिव टेस्ट होता है। इसमें ना बहुत गलतियां होने के चांसेस होते हैं, लोग गलत तरीके से रिपोर्ट करते हैं वह। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि एक अच्छे सेंटर पे टेस्ट हो सके और इस टेस्ट का इम्पैक्ट हो जाता है। ये नॉट एक तो सिंपल एग्जांपल, इसी तरह के बहुत सारे अदर ट्यूमर के स्पेसिफिक टेस्ट हैं इम्यूनोहिस्टोकेमिस्ट्री में होते हैं, जो हार्डली 1-2 दिन लेते हैं, बहुत ही सस्ते टेस्ट है, लेकिन उससे पता चलता है कि कैंसर बिहेव कैसे करेगा। जैसे ATRX म्यूटेशन हुआ, IDH बताया मैंने, EGFR हुआ। ये एक एक पद्धति है, ये बहुत टाइम सेविंग पद्धति है। लेकिन इस अभी का जो वर्ल्ड है of management of brain tumors is not dependent on a single technology. There are multiple technologies which are required. उसमें एक फिश है। फिश क्या होता है, अब जैसे हम अब कोरोना वायरस में हमने सीखा RNA DNA क्या होता है, ये सारे के सारे हमारे पूरे क्रोमोसोम पे होते हैं, है ना। तो ये इसको हम फिश से स्टडी कर सकते हैं। PCR है, PCR का रोल है। तो ये जहाँ पे ये सारी टेक्नोलॉजी हो वहीं पे इम्पैक्ट पड़ता है। मैं एक बहुत ही सिंपल तरीके से बताता हूँ कि एक म्यूटेशन है MGMT म्यूटेशन, मान लीजिए कैंसर के अंदर MGMT म्यूटेशन, उसका क्या फर्क, लोगों को जिनको अवेयरनेस नहीं होती वो नहीं करते। एक बड़ा इंस्टीट्यूट है जैसे हमारा है, उसके अंदर सब फैसिलिटीज हैं, हम लोग इस पेशेंट को स्पेसिफिकली वर्क करते हैं, कैंसर स्पेसिफिक वर्क।
ताकि उसकी ट्रीटमेंट क्या हो। अब इसका इम्पैक्ट बताता हूँ मैं क्या होता है। मान लो पेशेंट को सर्जरी के बाद कीमोथेरेपी देनी, अगर उसके अंदर MGMT म्यूटेशन है मिथाइलेशन के अंदर, तो उसकी इफेक्ट बहुत ज्यादा एनहांस हो जाएगा। कैंसर के अगेंस्ट जो दवाई दे रहे हैं वो बहुत ज्यादा एनहांस हो जाती है उसका इफेक्ट, कैंसर बहुत जल्दी रिग्रेस कर जाता है पोस्ट बचा हुआ भी। ये सब चीजें प्रॉपर वर्कअप करने से ही आती है। इसलिए आज की टाइम में एक बढ़िया सर्जन और उसके साथ प्रॉपर फर्दर वर्कअप, हिस्टोपैथोलॉजी और ये सारी मॉलिक्यूलर पैथोलॉजी, ये सब इंटीग्रेटेड होकर ही काम कर सकता है, स्पेशली ब्रेन ट्यूमर के अंदर। वरना एक सर्जन अपने पूरी जान कोशिश से कर सकते हैं, लेकिन अभी आप समझिए अगर पूरा इंटीग्रेटेड नहीं चलेगा तो जो इम्पैक्ट, अगर उनको 10 साल जीना है पेशेंट को, वो बेचारा 7 साल ही जी पाएगा। इससे एक और फायदा है, या इससे एक और फायदा मिलता है हमें कि हमारा मेन एम होता है कि पेशेंट की लाइफ ठीक चले। ठीक है, इसके लाइफ के इवेंट में एक ट्यूमर आ गया, बेनाइन था तो वो तो खैर हमेशा के लिए गायब हो गया। कैंसर भी अगर है तो उसकी ग्रेडिंग है 1 2 3 4, 4 तरह की ग्रेडिंग है। सारे कैंसर ग्रेड 4 नहीं होते। 1 2 3 4 4 ग्रेडिंग है, तो सबकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी हमें पता है कि इतनी होनी चाहिए। तो उसमें एक तो फर्स्ट टाइम की सर्जरी में हमें सिर्फ छोटा टिश्यू लेना है, बड़ा निकालना है, कितनी उसको रिलीफ देनी है और कितना लाइफ होना है। फिर मॉलिक्यूलर डायग्नोस्टिक से फर्दर ट्रीटमेंट हो गया। इसके बाद रेडियोलॉजी से जो अभी इंटेंसिव इमेजिंग होती है, अच्छी एमआरआईज हैं, उससे हमें रिपीटेडली पेट स्कैन है, इससे हमें पता चलता रहता है कि ये फ्यूचर में जो ट्यूमर है वो वहाँ या ट्यूमर से हटाए हुए एरिया में, जिसको ट्यूमर बेस कहते हैं हम, ट्यूमर बेस में वो डिजीज कैसे बिहेव कर रही है, क्या वो फिर से बढ़नी शुरू हो गई। तो मैं बताऊं कि कुछ केसेस में हमने 10 साल के अंदर उस ब्रेन कैंसर में 3 से 4 बार सर्जरी की, सो दैट जितनी बार वो बढ़ा, हमें पता है इतने सेफ मार्जिन के साथ उसे निकाल कर फिर से बाहर कर दिया, पेशेंट को फिर से 3-4 साल की लाइफ मिल गई। तो ये भी पॉसिबल है। एक पेशेंट तो 2008 से मैंने फॉलो करना शुरू किया है, एंड द पेशेंट इज सर्वाइविंग स्टिल, उसको 4 बार सर्जरी कर चुके हैं हम। बट ठीक है, जो प्रेजेंटेशन इनिशियली थी, जो वीकनेस थोड़ी बहुत थी उसको पहले से, उसके साथ लाइफ एडजस्ट हो गई, द पेशेंट इज हैप्पी। उसकी जो लाइफ थी, जो पहले दिन उसने सुना था कि मुझे ब्रेन कैंसर हो गया एंड नाउ आई विल बी नो मोर, तो अब ये पुरानी बात हो गई। तो फायदा यही होता है हमें, अगर हमें मॉलिक्यूलर डायग्नोस्टिक से ये पता चल गया कि ये स्टेज 3 है या उसमें इतनी माइटोसिस है, उसमें कैंसर सेल्स के परसेंटेज इतने हैं, तो हमें पता है कि इसकी लाइफ ज्यादा हो सकती है। हमें सिर्फ डेलिबरेटली और कितना एग्रेशन के साथ इस डिजीज को कितनी बार हम निकाल सकते हैं सेफली। तो ऐसा नहीं है कि सर्जरी इज अ वन टाइम अफेयर, नो, हमें क्या बार-बार जाना पड़ सकता है। लेकिन बार-बार जाकर भी अगर पेशेंट को लाइफ 3-4 साल की मिल जा रही है, देयर इज़ नो हार्म। कोई सर्जरी कोई ऐसी बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। इट्स जस्ट लाइक गिविंग दवाई। बस ये है कि वो दवाई ब्रेन तक, हाँ, इसमें ये भी दवाई से मुझे याद आया कि अब तो ये एडवांसमेंट भी है कि अगर आप ब्रेन कैंसर्स हटाते हैं और आपको लग रहा है कि कुछ चीज़ें वहाँ हैं, तो डायरेक्टली आप कुछ दवाइयाँ सीधा वहीं पे इम्प्लांट कर सकते हैं, सो दैट जो बेस में थोड़े बहुत कैंसर सेल छूटे तो हुए वहीं हैं, पर ही हमें वहीं पे जाकर उसे किल करते हैं। उस सेल ये को हम टेक्नोलॉजी भी अवेलेबल है। सर मेरा एक और मैं कमेंट करना चाहता हूँ। जैसे कई बार क्या होता है कि ना, ब्रेन ट्यूमर्स ऐसी जगह पे होते हैं जो एसेसिबल नहीं होते, सर्जरी से भी बहुत करेक्ट। होते हैं। हुँ। अब मॉलिक्यूलर डायग्नोस्टिक्स उसको क्या करती है, मान लीजिए एक ट्यूमर है, उसको बाहर तो वो बहुत ही लो ग्रेड का है, कम मारक क्षमता का, अंदर बहुत ही खतरनाक क्षमता का, जो हम लोग पहुंच नहीं पाते। पर मॉलिक्यूलर डायग्नोस्टिक जिसका उसका डीएनए, कैंसर का डीएनए खराब ही होगा, वो वहां से भी टिश्यू आएगा तो हमें पता चल जाएगा कि वो डीएनए खराब है, उसको ट्रीटमेंट करना है हमें aggressive। करेक्ट। इसके फर्स्ट ट्रीटमेंट अंडर अंडर ट्रीटमेंट नहीं हो सकता। बिल्कुल, बहुत बिल्कुल। इम्पोर्टेंट, बहुत बहुत इम्पोर्टेंट। इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट है ये। जो ये नहीं करेगा तो वो सोचेगा कि कैंसर तो बहुत ही लो मारक क्षमता का है, इसको जरूरत ही नहीं है, और वो आगे पेशेंट बढ़ जाएगा। वहाँ मिस होता ये है। बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर आप उसको पूरा वर्कअप नहीं कराएंगे तो आगे का रिस्क ज्यादा होगा। सर ये बहुत अच्छी सर इन्फॉर्मेशन आज मिल रही है सर हमारे दर्शकों को। और सर हमारे पास कुछ और भी क्वेश्चन आ गए हैं, मुझे मालूम है आपके पास समय कम है, लेकिन सर मैं उन सबको टच करूंगा और आपसे उनके बारे में जानकारी भी लूंगा हमारे व्यूअर्स के लिए। सर हमसे मिस्टर अनिल है, पूछ रहे हैं कि सर ब्रेन ट्यूमर जो है हमेशा ही 4th स्टेज पे ही डायग्नोस होता है, इसके बारे में क्या है? ना, उसी से ये एक मिलता मिथ है। जुलता क्वेश्चन है सर एक और, तो हाँ। दोनों इकट्ठे आंसर हो जाएंगे कि सर मिस्टर विनय है, वो पूछ रहे हैं कि लाइफ, हाउ मच लाइफ ए पेशेंट हैज आफ्टर डायग्नोस्टिक ए ब्रेन ट्यूमर। तो सर मैं करेक्ट। चाहूंगा कि इन दोनों क्वेश्चंस को आप दोनों एड्रेस। मिलते-जुलते सवाल हैं। हाँ, सबसे पहले मैं पहला सवाल लूँगा कि ये स्टेज 4 ट्यूमर है। ब्रेन कैंसर के बारे में समाज में बहुत कम पता है। नॉर्मल जो कैंसर है उसके बारे में लोगों को पता है। यस, तो होता यूँ है कि जैसे ही हम ब्रेन का स्कैन करते हैं, जो ब्रेन के सिम्पटम्स आते हैं, तो इसमें से 40% वैसे वाले पेशेंट हैं जिनको कैंसर शरीर में कहीं और हो रहा होता है।
और ये कैंसर उठकर ब्रेन तक पहुंच गया, तो आप किसी भी, जैसे लंग से है, किडनी से है, ब्रेस्ट से है, स्पाइन से है, प्रोस्टेट से है, अगर वहां से कैंसर उठा और ब्रेन में पहुंच गया, तो प्राइमरी डिजीज के लेवलिंग के हिसाब से ही वो स्टेज 4 काउंट करते हैं, करेक्ट? तो ये ब्रेन का स्टेज 4 नहीं कहेंगे हम, ये उस प्राइमरी डिजीज, जैसे लंग कैंसर है, लंग कैंसर अगर ब्रेन में पहुंच गया तो ये स्टेज 4 लंग कैंसर है। इसमें मिसनोमर क्या हो जाता है कि जब वो डायग्नोसिस ब्रेन तक आती है, कई एक बार ऐसा होता है कि लंग का उसे पता ही नहीं है, सबसे पहली बार स्कैन हुआ तो यहाँ पता चला, और फिर उसके जब आगे के डायग्नोस किए तो पता चलता है लंग में है, तो तब तक समाज में ये बात जा चुकी होती है कि उससे तो एक ब्रेन कैंसर डिटेक्ट हुआ और वो स्टेज 4 है। ऐसा नहीं है, क्योंकि 10 में से 4 केसेस, खास करके वैसे जो कैंसर के लिए ट्रीटमेंट पा रहे हैं, जो कैंसर के किसी शरीर के किसी और हिस्से के कैंसर का ट्रीटमेंट पा रहे हैं, उसमें से 10 में से 4 केसेस ब्रेन तक पहुंचेंगे। और अगर उसका पहला सिम्टम ही ब्रेन का आया, बाकी डिटेक्ट बाद में हुआ, तो समाज में लोग इसे मान लेते हैं कि ये स्टेज 4 था। ये स्टेज 4 ब्रेन के लिए नहीं था, ये स्टेज 4 दूसरी डिजीज के लिए, पहली बात। दूसरा, जो प्राइमरी ब्रेन का कैंसर है, वो शरीर के ब्रेन से कहीं और नहीं जाता, वो ब्रेन में ही होता है, वहीं पे पड़ता है। ओके, तो जो ब्रेन कैंसर हम कह रहे हैं पर्टिकुलर, जो बाकी 60% केसेस हैं, तो उसमें से भी हार्डली 4-5% होते हैं जो कि सबसे एडवांस स्टेज के सबसे खराब वाले ब्रेन कैंसर्स हैं। बाकी जितने भी ब्रेन कैंसर्स हैं उसमें स्टेजिंग होती है, 1, 2, 3, 4। तो जो स्टेज 4 हैं, न्यूरोसर्जन्स की सोसाइटी में, न्यूरो के साइंस की सोसाइटी में, न्यूरोपैथोलॉजी की सोसाइटी में, सिर्फ उस स्टेज 4 वाले को हम ब्रेन कैंसर कहते हैं। बाकी को कहते हैं कि ठीक है, एस्ट्रोसाइटोमा है या ग्लायोमा है, बट दैट इज ट्रीटेबल, लाइफ विल गो ऑन। सिर्फ वो जो ब्रेन कैंसर्स हैं, वो स्टेज 4 वाले हैं, जो पैथोलॉजिस्ट हमें बताते हैं कि ये स्टेज 4 का कैंसर है। उसका इससे कोई लेना देना नहीं कि शरीर के किसी हिस्से से आकर वहां पर बैठा या वहां पर बना। तो सारे कैंसर स्टेज 4 नहीं होते, पहली चीज। मोस्टली शरीर के दूसरे हिस्से से आ रहे होते हैं, और अगर पहले एक ही ट्यूमर आया अंदर में, एक ही अगर बैठा है, आप उसे निकाल दो, लाइफ उतनी तो कम से कम रहती है जितनी बाकी कैंसर के लिए है, उससे बेटर रहेगी। तो सर ये तो आज हमें बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपने हमारे जवाब दिए और हमें इतना जागरूक किया कि ब्रेन ट्यूमर कितने फैटल हैं। फैटल इज नॉट द करेक्ट वर्ड। ये आप इसे आज के समय में दोनों स्पेशलिटीज के योगदान से इसे बहुत अच्छे से ट्रीट कर सकते हैं, और इससे घबराना नहीं है, इससे लड़ना है। तो सर मैं आपसे सर डॉक्टर प्रशांत एंड डॉक्टर नवीन से सर यही जानना चाहूंगा चलते चलते कि सर व्हाट शुड बी द टेक होम मैसेज ऑन द वर्ल्ड ब्रेन ट्यूमर डे सर, बिकॉज ये आपके इस मैसेज के बिना सर हमारा ये प्रोग्राम अधूरा रहेगा। मुझे मालूम है आपके लिए भी बहुत सर्जरीज अभी वेट करनी है, और डॉक्टर नवीन ने भी काफी उनके मॉलिक्यूलर स्टडीज के काफी चीजें जो है उनके पास भी बहुत व्यस्त रहते हैं। तो आज भी हमारे एक पेशेंट की मॉलिक्यूलर स्टडी कर रहे हैं अभी। हाँ, तो जो 5 कार्डिनल साइंस थे, वो लोग जरूर याद रखें कि अगर आपके शरीर में कहीं पे भी नॉर्मल से एबनॉर्मल बिहेवियर कोई अंग आपका कर रहा हो, हाथ चलने कम हो गए, पैर चलने कम हो गए, या सनसनाहट झंझनाहट है जो कि कहीं और किसी और तरीके से एक्सप्लेन नहीं हो रही, फिट्स आने शुरू हो गए, दिखने में गड़बड़ी आई, बोलने में दिक्कत हो रही है, या सर दर्द फटने वाला है, उल्टियां हो रही हैं और वो ठीक नहीं हो रही, इन सब में से अगर कुछ भी हो रहा है, तो टेक होम मैसेज ये है कि इसको आप उसी दिन जाकर चेक कीजिए, सेम डे, मतलब रादर वी आर ऑन टोज फॉर ऑल दोज पेशेंट्स। हम रात में भी सीटी स्कैन करके ऐसे पेशेंट को हमने कई बार लिया है सर्जरी के लिए कि चलो कोई बात नहीं, आज ही आया पेशेंट, लेकिन हम ब्रेन के बाकी हिस्से को डैमेज नहीं होने देंगे, सो दैट उसकी लाइफ उसके बाद भी, ट्रीटमेंट के बाद भी ठीक रहे। और ये बिल्कुल ही फैटल नहीं है, किसी भी सर्जरी में पेशेंट का कभी भी वो जो कहते हैं कि ऑन टेबल डेथ की बात थी, वो पुरानी बातें हो गई, टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस है। ब्रेन ट्यूमर्स में 90% ऐसे हैं जो बड़े अच्छे से ट्रीटमेंट होते हैं, मतलब आधे से ज्यादा बेनाइन है। 40% तो मैंने बताया शरीर के दूसरे हिस्से से ब्रेन में आए थे, जो हैं उसमें आधे से ज्यादा बेनाइन है। बेनाइन का मतलब वो बिल्कुल ही उसमें कैंसर के लक्षण ही नहीं होते, आप उसे वहां से हटा दो, वो जिंदगी भर के लिए खत्म हो गए, पर उसे हटाना जरूरी है। अगर आप ब्रेन ट्यूमर, ब्रेन कैंसर में सोचकर अगर आप बैठे रह गए, तो वो वही इतना बड़ा हो जाएगा कि ब्रेन के बाकी हिस्से को डैमेज कर देगा। कैंसर से डेथ नहीं होती, कभी भी ब्रेन ट्यूमर से डेथ नहीं होती, डेथ हमेशा नॉर्मल ब्रेन के हिस्से के डैमेज से होती है। तो हम डैमेज जो है ट्यूमर की वजह से, हाँ, डैमेज ट्यूमर से होगा, लेकिन जो गड़बड़ी आती है वो नॉर्मल जो ब्रेन का फंक्शनिंग है, जो हमारा मदरबोर्ड है,
उस मदरबोर्ड के जो चिप्स गड़बड़ होने शुरू होते हैं, वहां से गड़बड़ी आती है। तो जो फॉरेन बॉडी एक बैठा है, जो एबनॉर्मल ग्रोथ हो गई है, उसे हटा देने में क्या नुकसान है? हटाने की हमारे पास ढेर सारी टेक्नोलॉजी है, बिल्कुल। उसे हटा और देना सर हटा देना चाहिए। बिल्कुल मैं ये कहना चाहूंगा कि अवेयरनेस बहुत अच्छा हम फैलाना चाह रहे हैं, और लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ ट्रीटमेंट ऑफ ब्रेन ट्यूमर इज नाउ वेरी कॉम्प्लेक्स एंड इट हैज टू बी डन ऐसी जगह पे करें, ऑपरेशन भी हो जहाँ पे सारी फैसिलिटीज हो, रेडियोलॉजी भी अच्छा हो, पैथोलॉजी भी अच्छा हो, सर्जन भी अच्छा हो, रेडिएशन हो, एक फुल ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल कंप्लीट फॉलो, पैकेज चाहिए, सब कुछ कंप्लीट अच्छा चीजें हो। चाहिए, सारी क्योंकि चीजें। ब्रेन ट्यूमर अब ऐसा नहीं रह गया कि आप ऑपरेट करके निकल गए, सब कुछ अगर अच्छा नहीं हो तो वो प्रोलॉन्गिविटी नहीं आती। सो आई थिंक दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरीबडी टू रियलाइज नाउ कि बहुत कुछ चेंजेस आ रहे हैं एंड द सेंटर शुड बी इक्विप्ड विद एवरीथिंग सो दैट द पेशेंट प्रोलॉन्गिविटी एंड सर्वाइवल इंक्रीज। और घबराएं मत, क्योंकि बिल्कुल घबराएं नहीं, क्योंकि अब बहुत जल्दी बहुत इलाज और भी आएंगे एंड वी आर वेरी अपडेटेड अबाउट ट्रीटमेंट्स एंड यू नो डायनेमिक सर्जन है हमारे पास और टीम भी बहुत बढ़िया है। सो आई थिंक आप बिल्कुल मत घबराइए प्लीज, आपको कोई भी कंसल्टेशन हो आइए एंड वी विल डेफिनेटली ट्राई टू सॉल्व योर। बिल्कुल सर। Viewers, there is always a man behind the machine. Only machine cannot do anything. So the man means a surgeon and a good pathologist. So do not fear it. Dr. Prashant is always available Monday to Saturday, 9 to 5 with Shri Balaji Action Medical Institute in the Department of Neurosurgery. Dr. Naveen is always available in Action Cancer Hospital. You can still have any question. You can give me, you can send me in my inbox, and we will certainly give you the response on that. Thank you, sir. Thank you for joining us. मैं डॉक्टर प्रशांत से एक बार और रिक्वेस्ट करूंगा कि सर हमें ऐसे ही अवेयरनेस प्रोग्राम्स, ऐसी अवेयरनेस टिप्स जरूर दें। आजकल ब्लैक फंगस काफी चल रहा है, तो आज आपने सवेरे जब मेरे से डिस्कस किया कि हम ऐसे लगभग 20 केसेस तो हम कर भी चुके हैं, तो सर जब आपको सर अपनी सर्जिस से हमारे व्यूअर्स के लिए मौका मिले तो हमें सर ब्लैक फंगस से कैसे बच सकते हैं उसके बारे में। ये भी एक बड़ा है, खास करके जिस ब्लैक फंगस की हम बात करते हैं उसको मेडिकल फील्ड में कहा जाता है कि वो कैंसर से भी ज्यादा तेजी से फैलता है। अगर हम इन दोनों शब्द को जोड़ें तो जो तो सर म्यूकोरल ये शब्द आप अगली बार के लिए हमारे लिए बचा के रखिएगा और हम आपसे समय लेंगे। व्यूअर्स, वी विल बी अगेन बैक ऑन अनदर अवेयरनेस प्रोग्राम। टिल देन, goodbye and take care yourself from corona and other disease, and do not forget the tips which Dr. Prashant Chaudhary has shared with us on brain tumor. Thank you, sir. Thanks a lot for joining us. Thank you. Thanks for watching us.